نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں سب مل کے حق کی بات کریں، آئیں سب مل کے حق کی بات کریں، ذکر مولائے کائنات کریں، ذکر مولائے کائنات کریں، کیونکہ آج 21 رمضان ہے اور 21 رمضان پورے عالم اسلام میں غم کی لہر، ایک غم کا ماحول، کیونکہ علی نے سجدہ خالق میں تیغ کھائی ہے، علی نے سجدہ خالق میں تیغ کھائی ہے، جہاں میں قبل قیامت قیامت آئی ہے۔ آئیے ناظرین، اب ہم ایک بڑی اہم ترین شخصیت کے حضور پہنچتے ہیں۔ زاگری کی دنیا میں خطابت کے حوالے سے اپنی ایک منفرد پہچان بنانے والی شخصیت، جنہیں کہا جاتا ہے سلطان الذاکرین، یعنی ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ مولائے کائنات کی اس خاص تاریخ یعنی یوم شہادت 21 رمضان کے موقع پر مولا کی سیرت کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین سے وہ مخاطب ہوں اور اپنے خیالات پیش کریں۔ سماعت فرمائیے سلطان الذاکرین مرزا شفیق حسین شفق صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال غالب لا کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام فزت برب الکعبہ۔ واجب الاحترام سامعین کرام، قابل صد احترام ناظرین کرام، میں نے جن کلمات کو آج کی گفتگو کے لیے مختص کیا ہے وہ مبارک کلمات امیر ممکنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ کلمات ہیں جو انہی نے وقت شہادت ارشاد فرمائے۔ مولائے کائنات نے فرمایا جب آپ کو شہید کیا گیا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میدان بدر میں جب جنگ بدر فتح کی تو امام علی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ میدان احد میں جب جنگ احد فتح کی تو یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ جنگ خندق کے موقع پر جب خندق کو فتح کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ جنگ خیبر کے موقع پر جب معرکہ خیبر کو سر کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح سے عالم اسلام کی 82 جنگیں ہیں جو مولائے کائنات امیر ممکنات حضرت علی نے فتح کی، مگر کسی موقع پر بھی آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا، بلکہ اپنی ان فتوحات کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح قرار دیا۔ اپنی فتح اگر کسی شے کو قرار دیا تو وہ ہے شہادت۔ جب آپ مسجد کوفہ میں شہید ہوئے تو آپ نے یہ مبارک کلمات اپنی زبان سے دہرائے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے جب یہ کلمات ہمارے صفحہ ذہن پہ ابھرتے ہیں تو ان کلمات کے ساتھ امیر المومنین کا کردار بھی ہمارے صفحہ ذہن پر ابھر آتا ہے۔ اس موقع پر جب ہم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام میں داخل ہو چکے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی شہادت کو یاد کر کے کوئی پیغام ان کا اپنے نوجوانوں تک پہنچاؤں، جس پیغام کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو بھی روشن و منور کر سکیں اور سماج اور معاشرے کی بھی
इस्लाह का फरीज़ा अंजाम दे सकें। इस मरहले पर क्योंकि एक महदूद वक्त हमारे सामने है और इस मुख्तसर से वक्त में मुझे अपना पैगाम पहुंचाना है, लिहाजा मौलाए कायनात की ज़िंदगी के एक अहम रुख की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, और वो है आपका यतीमों के साथ हुस्न सलूक। यतीमों के ताल्लुक़ से कुरान मजीद में बहुत सी आयात मौजूद हैं। यतीमों के ताल्लुक़ से पैगम्बर इस्लाम की बहुत सी अहादीस हैं, जिसमें यह हदीस बड़ी मारूफ है कि जिसने भी किसी यतीम की किफ़ालत की वो जन्नत में मेरे साथ उस तरह से होगा कि जिस तरह से हाथ की दो उंगलियां एक दूसरे से मुत्तसिल होती हैं। तो यतीमों की अज़मत और यतीमों की रिफ़त और यतीमों की अर्जिश इस्लाम की निगाहों में बहुत है। बानी इस्लाम ने यतीमों की अहमियत को मुख्तलिफ मौक़े पर ज़ाहिर किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का किरदार भी यतीमों के साथ हुस्न सलूक की दावत देता है। बहरुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने एक वाक़या तहरीर किया है कि जब अमीरुल मोमिनीन का दौरे खिलाफत था, एक शब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने बैतुल शरफ से बाहर निकले। रात का सन्नाटा है, हर तरफ तारीकी ही तारीकी है, और अमीरुल मोमिनीन अपनी रियाया के मसाइल जानने के लिए, ग़ुरबा की परेशानियां समझने के लिए शहर कूफा की गलियों में हैं। रावी कहता है कि एक घर के करीब से गुजरे जहां से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। दरवाजे पे ठहर गए, दस्तक दी, एक खातून आई। पूछा क्या वजह है कि तुम्हारे घर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है? कहने लगी कि ऐ शख्स, मैं बेवा हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है और मेरे बच्चे यतीम हैं। मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, मेरे बच्चे फाके से हैं। फाके की वजह से, भूख की वजह से बच्चे तड़प कर रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, और मैंने बच्चों को इत्मीनान दिलाने के लिए एक चूल्हे पर देगची चढ़ा दी है और उस देगची में पत्थर उबाल रही हूं ताकि बच्चे ये समझें कि खाना बन रहा है और रो रो कर थक कर सो जाएं। शायद इसी मंजर को जहन में रखते हुए किसी शायर ने कहा था, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए, एक माँ उबालती रही पत्थर तमाम रात। मौलाए कायनात ने कहा ठहरो, वापस घर गए। घर से जाकर जो लेकर आए और वो उस औरत को दिए और कहा लो, ये जौ की रोटियां तुम अपने बच्चों के लिए बनाओ। फिर ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे वाक़तन थक के सो न जाएं जब तक ये रोटी बनाए। दूसरी तरफ आशेजो हरीरा बनाने के लिए मौलाए कायनात ने खुद चूल्हे पे एक देगची को चढ़ा दिया। इधर मौलाए कायनात आशेजो बना रहे हैं, उधर वो जो की रोटियां बना रही है, और बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कब खाना तैयार हो और हम खाने को तनावुल करें। रावी कहता है कि इमाम अली ने इस ख्याल से कि बच्चे कहीं थक के सो ना जाएं, कभी आशेजो की तरफ आते थे और कभी बच्चों की तरफ आते थे, बच्चों का दिल बहलाते थे, बच्चों से बातें करते थे। अब रावी कहता है कि इमाम अली ने वो खाना अपने हाथों से उन यतीम बच्चों को खिलाया। जब यतीम बच्चों को खाना खिला चुके तो अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया और कहा कि परवरदिगार, मैं तुझसे दस्त बदुआ हूं कि इन यतीम बच्चों को कभी भूखा न सोने देना। ये बच्चे आज के बाद अपनी ज़िंदगी में कभी भूख का सामना न करें। ऐ मेरे रब, इनके रिस्क का तमाम इंतज़ाम फरमा। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन ने उस मुअज़्ज़मा से इजाज़त तलब की और घर से बाहर चले गए। सुबह जब हुई, उस औरत की हमसाया औरत जब घर में आई तो उसने रात का पूरा किस्सा सुनाया कि कोई था जो इस तरह से आया, जो लाया,
फिर हमने जो की रोटियां बनाई, फिर हमने अपने बच्चों के लिए आशय जो तैयार किया और उसमें उस आने वाले ने हमारा ताउन किया और बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद दुआएं देकर वो चला गया। तो उस हमसाया औरत ने कहा कि वो कैसा था। उसने जब शक्ल शबाहत बताई तो कहने लगी, तुम्हें मालूम है वो कौन था? वो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम थे, हाकिम कूफा। कहने लगी, ऐ बीबी, मैंने क्या गजब किया, अमीरुल मोमिनीन से अपने बच्चों के लिए खाना तैयार कराया। मैं अमीरुल मोमिनीन से माफ़ी की तलबगार हूँ कि मुझसे अनजाने में ये गुस्ताखी सरजद हुई कि मैंने उन्हें ये जहमत दी। उस हमसाया औरत ने कहा कि ऐ बीबी, अमीरुल मोमिनीन से इस तरह की सैकड़ों हिकायत मुख्तस हैं, वो इस तरह लोगों की खिदमत करते रहते हैं। तो ये अमीरुल मोमिनीन हजरत अली का किरदार था कि जो यतीमों के साथ वो उसने सुलूक करते थे। ऐसे खैर खा और इमाम बरहक को इब्न मुलजिम मलऊन ने 19वीं रमज़ान की शब में हाकिम शाम के इशारों पर एक ऐसी ज़रब लगाई कि वो ज़रब अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी के ख़ात्मे का सबब बन गई। और ऐ अमीरुल मोमिनीन के गमखारों, ऐ मौला के अज़ादारों, इस मौके पर भी जो अमीरुल मोमिनीन ने पैगाम दिया है, रहती दुनिया तक उसे याद रखा जाएगा। किसी ने आज तक दुनिया में अपने कातिल के साथ ऐसा सलूक नहीं किया होगा कि जो अमीरुल मोमिनीन ने अपने कातिल के साथ किया है। यतीमों के साथ उसने सलूक करने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, मगर अपने कातिलों के साथ इस सलूक का मुजाहरा करने वाला कोई दूसरा ना होगा कि जब अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में जामे लबन पेश किया गया, दूध का गिलास, तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ये दूध का गिलास मेरे कातिल इब्न मुलजिम को दे दो, इसलिए कि ये मुझसे ज़्यादा प्यासा है, इसे ज़्यादा प्यास लगी है। ज़रा सोचिए, क्या कायनात में कोई ऐसा इंसान है जो अपने कातिल को जामे लबन पेश करे? ये किरदार सिवाय अमीरुल मोमिनीन के तारीख़ में कहीं दूसरी जगह नज़र नहीं आता। ऐसे इमाम बरहक को इस जालिम ने, इस मलऊन ने 19वीं रमज़ान की सुबह ज़रबे कारी लगाकर ज़ख्मी कर दिया। और 21वीं रमज़ान की सुबह वो क़यामत की सुबह थी कि जब सुतून हिदायत मुनहदिम हो गया, जब शम्म इमामत गुल हो गई और कूफे में हर तरफ एक शोर था, क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन को कत्ल कर दिया गया, अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया गया, अमीरुल मोमिनीन इस दुनिया में नहीं रहे। अज़ादारा ने अमीरुल मोमिनीन, सोगवारा ने मौलाए मुत्तक़ियान, तारीख़ ऐसा किरदार, ऐसा इंसान, ऐसा रहनुमा, ऐसा रहबर पेश करने से कासिर है। मैं अपनी बात को एक शेर पे तमाम कर रहा हूँ कि तारीख़ नहीं मिलती ऐसे भी मुजाहिद की, तारीख़ नहीं मिलती ऐसे भी मुजाहिद की, काबे में फिलादत हो, मस्जिद में शहादत हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।